महाकरुणा दिवस समारोह 2026 इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में भिक्खू संघ सेना जी के 68वें जन्मदिवस के साथ मनाया गया। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर आए हुए अतिथियों द्वारा किया गया। आज के इस कार्यक्रम में डॉक्टर प्रिया रंजन त्रिवेदी, डॉक्टर मार्कंडेय राय, डॉक्टर एस.एन. पांडे, डॉक्टर किरण बेदी, जैन लोकेश मुनि, डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी, गोस्वामी सुशील महाराज, फादर बेटो रोड्रिग्स, बिन्नी सरीन, जनरल यस मोर, आचार्य येशी फूड कोर्स अशोक बंगड़ी, डॉक्टर बीजू शिवमपिल्ली, डॉक्टर पीपी वांगचुक, ए.के. गुप्ता आदि ने महाकरुणा दिवस 2026 पर अपना संबोधन दिया। साथ ही महाकरुणा दिवस विद्यापीठ के विषय में मिश्रित जानकारी प्रस्तुत की गई। आज के इस कार्यक्रम में भिक्खू संघ सेना द्वारा आए हुए अतिथियों को सम्मानित भी किया गया। Esteemed members of Mahabodhi International Meditation Center and Indian Institute of Ecology and Science Environment, it's my pleasure, honor and privilege to welcome all of you on the great occasion of Mahakaruna Day, which happens to be the 68th birthday of our most revered, most respected Guruji Bhikkhu Sangh Sena. And in the beginning only, I will convey my special thanks to Dr. P.R. Trivedi and Dr. Markande Rai. With their efforts only, we are all here and this program could be possible. So, special thanks to them. As far as Mahabodhi International Meditation Center is concerned, this organization was established in 1986 by our Bhikkhu Sangh Sena on a 250-acre stretch of barren, cold desert land. There was nothing there actually. And now if you go and see it, it is like a heaven-like oasis. And today, MIMC, that is Mahabodhi International Meditation Center, has grown into one of the biggest non-governmental organizations in Ladakh and is well known in India and abroad. We have various activities like meditation, yoga, spiritual teaching, education, healthcare for elderly and differently able persons, various humanitarian activities which attract large number of peace-loving people around the world. This could happen only with the untiring efforts of our Bhikkhu Sangh Sena ji. And today, Bhikkhu Sangh Sena has distinguished himself as a charismatic and highly energetic social and spiritual reformer. The organization founded by him is now more than an organization. It is a movement for change. Today, since we are talking of compassion, and I told you that we have come up with the most, relevant and interesting theme also, and it's all because of Dr. Trivedi and Dr. Markande Rai, that is healing the world through compassion. And as far as the compassion is concerned, we know that compassion is the only tool and the most potent and powerful force in the present world to its various problems. Compassion is the feeling that arises when we are confronted with someone else suffering and feel motivated to relieve that. Compassion, of course, is the core value of all religion, all philosophies in the world. And main thing about Karuna is Karuna proposes a strategy of complementing rather than crushing and defeating each other. And we have to understand few things about compassion. Firstly, it is all-inclusive term. It means it has to be introduced in all our aspects of life. Secondly, compassion is not only due to our fellow human beings, it is due to the rest of the creation as well as all natural elements of nature actually. And we know that what we have done, and since we are sitting here, we are all aware about Delhi pollution, and it's all because we have become non-compassionate. And WHO reports that every year 7 million people are killed by pollution actually. So, and now मैं था अभी USA में और I was reading a book, so Give and Take by Adam Grant. It's a very interesting book, and they have said about 3 types of people in the world. One is the giver, one is the taker, and one is the matcher. So, giver are those we are talking about, compassionate people. And he has given so many examples, live examples of USA, so many about presidents, very top business people. And they have mentioned that he has given live example that only those were successful
who have done something for the society, who were the giver actually. And lot of studies have been conducted in the various universities in the USA also, and they say that whenever we are compassionate, uh, our body generates happy hormones, and we can reduce our anxiety, we can reduce our stress level, and we can feel more happier also. And what we are doing today, we are building walls between the societies and the nations, and compassion does not build walls, it builds bridges actually. That is the main difference about compassion. एंड करुणा कहती है जिसको एक ऐसा गुण है जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है, मानव को मानव बनाता है, और ये ऐसी शक्तिशाली शक्ति है जो व्यक्तियों और समाजों को पूरी तरह से बदल सकता है। अगर हम इसका उपयोग करेंगे, जो हमें भिक्खू सक्सेना जी सिखा रहे हैं इतने सालों से, तो हम पूरी दुनिया को पूरी तरह से जो है बिल्कुल बदल सकते हैं। और कहा कि प्रकृति है हमारी, प्रकृति कहती है कि आप भी खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए जो है। लेकिन हमने क्या कर लिया, हम विकृति में आ गए हैं उसकी, कि वी विल बी हैप्पी एट द कॉस्ट ऑफ एनीवन एल्स। हम दूसरों को दुखी करके अपने को खुश रखना चाहते हैं। लेकिन कंपैशन हमारी संस्कृति है, वो बताता है कि मैं खुश रहूं या ना रहूं, मुझको भले ही कितनी प्रॉब्लम हो, लेकिन पड़ोसी को कभी दुख नहीं दूंगा जो है। दैट इज़ आवर संस्कृति, दैट इज़ व्हाट कंपैशन टेल्स अस आल्सो जो है। तो आज गुरुजी का हमारा बर्थडे भी है, और कई बार गुरुजी कहते भी हैं कि अनिल जी आप मेरे बारे में भविष्यवाणी नहीं करते हैं जो है। और लास्ट टाइम हम लोगों ने यहीं पर प्रोग्राम किया था, और मैंने कहा था कि गुरुजी आप देखना 1 साल में आप कहाँ पहुँचेंगे, आपका क्या नाम होगा। और इस साल 2 घटनाएं हुई। एक इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, अभी पिछले महीने ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनको IDY PM योगा अवार्ड से सुशोभित किया। बहुत बड़ी बात है, पूरी दुनिया में नाम हुआ उनका। और अभी 3 जनवरी को इसी साल प्राइम मिनिस्टर जी ने दोबारा से उनको सम्मानित किया, जब लॉर्ड बुद्धा की रेलिक्स इंडिया में लाई गई हैं हांगकांग से, और उनका इनॉग्रेशन था। तो उसमें भी हमारे गुरु जी को जो है बिल्कुल उनको सम्मान मिला उसमें जो है। और तीसरा यह है कि लास्ट टाइम हम लोगों ने कमेटी बनाई थी, और उसमें कहा था कि हम एक महाकरुणा के ऊपर हम कुछ कोर्सेस लॉन्च करें, यूनिवर्सिटी लॉन्च करें। और उसमें हम लोगों ने त्रिवेदी साहब, मार्कंडेय राय साहब ने बहुत मेहनत की है, और अब ये डिसाइड हुआ है, और हम लोग काफ़ी सिलेबस भी बन गया है, बुक्स भी बन गई हैं, कि हम लोग महाकरुणा विश्व विद्यापीठम की स्थापना हम लोग कर रहे हैं इस साल। और उसमें हम लोग ऑनलाइन कोर्सेस रन करेंगे। पहला सर्टिफिकेट कोर्स और डिप्लोमा कोर्स, उसकी भी हम लोगों ने काफ़ी रूपरेखा बना ली है ऑलरेडी जो है। और हम लोग अभी जल्दी ही उन कोर्सेज को लॉन्च करेंगे यहाँ पर। और इसके अलावा जो पूरे साल हमारे महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर में काम हुआ, उसकी सराहना पूरे दुनिया ने की। और ख़ास तौर से जो लद्दाख गवर्नमेंट भी है, वो भी गुरुजी को बहुत सारी जो हमारी गवर्नमेंट के जो डेवलपमेंट वर्क हैं उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व कर रहे हैं। इवन अभी एक बहुत बड़ा ओल्ड एज होम बन रहा है, और वो उसका भी उसको संचालन के लिए गुरुजी को ही उसको नामित किया गया है। तो एक बहुत बड़ी बात होगी जो है। और आप जो भी यहाँ पर आए सब लोग, आपने अपना बहुत बहुमूल्य समय निकाला, मैं सभी को आपको धन्यवाद करता हूँ। और जो गुरुजी का जो मिशन है कि महाकरुणा को हर जगह फैलाना, तो मैं चाहूँगा कि हम सब कंपैशनेट बने, अपने आप को चेंज करें, दुनिया को चेंज करें, और एक अच्छा एक पृथ्वी पर भी हम लोग स्वर्ग बना सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि. May all the Buddhas and Bodhisattvas, Devas and Nagas, saints and sages from all the directions of the universe may kindly look at us
and shower their blessings upon all of us for the success of our coming together in this beautiful hall in the heart of our country, the capital city of our great country, Bharat. With full of gratitude, with full of thankfulness, I would like to extend hearty welcome to our distinguished spiritual luminaries, spiritual masters, world peace promoters, interfaith harmony promoters who have gathered here. You will all have to forgive me for not being able to mention the names of each distinguished persons who are present here for two reasons. One is my memory is weak, cannot remember. Another one is time constraint. If I take the name of all the distinguished guests here, it would take more than half an hour. So with this, I am sure you will all forgive me for this 68-year-old man with diabetes. So my memory is fading away. Absolutely all right. But few names I cannot forget, sir. His Holiness Acharya Lokesh Muni, how can I forget? And distinguished डॉक्टर संदीप मारवा का नाम कैसे भूल सकते हैं, कैसे भूल सकते हैं. और यहाँ मैडम और हमारे इंटरफेथ स्पिरिचुअल मास्टर, मोस्ट रेस्पेक्ट डियरेस्ट एंड मोस्ट रेस्पेक्टेड डॉक्टर इमाम इलियासी, the chief imam of All India Imam Association of India. How can I forget your name, sir? और उसके आपके स्थान में प्राम पूज्य स्वामी गोस्वामी सुशील जी महाराज कैसे भूल सकता है. उनके सामने मोस्ट रेस्पेक्टेड एंड डियरेस्ट परमजीत सिंह चांदोक जी कैसे भूल सकते हैं, कैसे नहीं भूल सकते. फिर हमारे साथ डॉक्टर त्रिवेदी साहब का तो पहले ही मैं नाम लेना चाहिए था. डॉक्टर त्रिवेदी साहब, फाउंडर ऑफ सेवरल इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटीज एंड हिंदी में ज्ञान के भंडार, इंग्लिश में स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज. और उसके साथ साथ हमारे साथ डॉक्टर मार्कंडे जी, द चेयरमैन ऑफ द ग्लोबल पीस फाउंडेशन इंडिया. फिर हमारे साथ ग्रेट पीस प्रमोटर्स, रिलीजियस हार्मोनी, इंटरफेथ प्रमोटर्स, डॉक्टर फादर थॉमस. फिर डॉक्टर फादर बिंटू जी है ना आप, हाँ. फिर हमारे साथ हमारे भाई रिलीजन के डॉक्टर्स ए के मार्चेंट सर, ए.के. मार्चेंट साहब कौन नहीं जानते हैं. अनदर स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज. बहुत बड़े. अब किसी धर्म के बारे में भी, किसी कल्चर, किसी देश के बारे में, ही इज ए मूविंग वॉकिंग लाइब्रेरी. एक दफ़ा उन्होंने बुद्धिस्ट की स्क्रिप्चर के बारे में बताया. मैं तो बिल्कुल ऐसे ही स्टन हो गया था. पूरा स्क्रिप्चर कहाँ पर क्या है, हम बुद्धिस्ट स्कॉलरों को मुश्किल होता है याद करना. सो और हमारे बीच में इतने डिस्टिंग्विश गेस्ट है. हमारे साउथ अमेरिका के सूरियानाम एम्बेसी के इंचार्ज हैं. थैंक यू. और सो मेनी श्री अभिजीत हालदार जी, जनरल डायरेक्टर ऑफ द इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन है हमारे साथ. डॉक्टर विजय पिल्लू जी है हमारे बीच में. वेनरेबल आचार्य ईशे है, ए ग्रेट स्कॉलर, द फॉर्मर लोकसभा स्पीकर ऑफ द टिबेटन गवर्नमेंट इन एक्साइल. बहुत बड़े स्कॉलर्स और इंटरफेथ प्रमोटर्स है. और बहुत यहाँ पर, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर नॉट बीइंग एबल टू रिमेंबर, हमारे गेस्ट फ्रॉम श्रीलंका से आए, मैडम भी आए हैं. और कर्नल अलूवाले साहब बहुत दिनों के बाद आए हैं. और
जनरल, हाँ जनरल याशमोर, आप बाद में आया है तो बाद में आया तो इसी बाद में भी नाम ले देता है, क्या करें आप थोड़ा लेकिन थैंक यू सो मच जनरल याशमोर जी, अनदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल है, कोई मामूली जर्नल नहीं है. He's been working on so many subjects: peace, harmony, environment, education, and so many things have been associated with our organizations for last many years. And important, he's the CEO of Save the Himalaya Foundation. हमारे बीच में डॉक्टर पंकज भी उसी के पीछे, जब जनरल साहब खड़ा हो गया तो मुझे नज़र आया पंकज, डॉक्टर पंकज जी हमारे सेव द हिमालय फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स है, अभी बहुत काम कर रहे हैं हिमालय का, जो खास करके वाइल्ड लाइफ और हिमालय के ऊपर. और बहुत से यहाँ डिस्टिंग्विश हमारे हिंदुस्तान टाइम के रिटायर्ड जाने माने जर्नलिस्ट पीपी वांगचुक साहब भी है, और ज्ञान पालधन, a great scholar from Ladakh, most venerable Gyan Paldan from scholars, and so many other guests who are present. Please, again, forgive me for not being able to mention your name. I am deeply, deeply grateful to you all for sparing your precious time to join us this Maa Karuna Divas, despite of your busy schedule. दिल्ली में सब बिजी रहता है, दिल्ली दिल वाले नहीं है, बहुत बिजी रहता है, बहुत बिजी. तो फिर भी आप लोग ने माँ करुणा को इम्पोर्टेंट समझ के आप आए हैं यहाँ आशीर्वाद देने के लिए, अपने सपोर्ट देने के लिए, और अपने विजडम और नॉलेज को शेयर करने के लिए. मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, डीपली ग्रेटफुल. मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आपके समय बर्बाद नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे बीच में इतने जाने माने स्कॉलर्स, नॉलेजेबल स्पिरिचुअल मास्टर्स सब है. तो ज़्यादा ना कहते हुए मैं इतना ही करूँगा कि माँ करुणा, जैसे अभी इस मैसेज में, वीडियो मैसेज में आपने सुना है स्वामी चिदानंद जी महाराज का, साध्वी भागवती का, फिर आप अभी हमारे हिज होलीनेस आचार्य लोकेश मुनि से भी, और हमारे डॉक्टर संदीप मारवा, स्वामी विवेकानंदा का रीइंकारनेशन मैसेज देंगे. तो हम लोग सब मिल करके ये महाकरुणा, द यूनिवर्सल कंपैशन एज टॉट बाय बुद्धा, कैसे हम लोग दुनिया के कोना कोना में ले जाए, टू reduce or to overcome all kinds of violence, hatreds, destructions, divisions, and so on. जैसे आपने सुना है, माँ करुणा is one of the greatest force in the world which can bring transformations. Universal compassion, not Buddhist compassion, not Hindu compassion, not Indian compassion, but universal compassion. I think आप सब जानते हैं इसको. We would like to seek your blessing, we like to seek your guidance. इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए. मुझे ये बोलते हुए बहुत खुशी होता है कि डॉक्टर त्रिवेदी साहब, डॉक्टर मार्कंडे साहब ने अभी ये कुछ सिलेबस बना है. हम लोग पिछले कई साल से एक माँ करुणा विश्वविद्यालय स्थापन करने का सोच विचार कर रहे थे. अभी उसका कई साल ऐसे सोच विचार चर्चा करने के बाद धीरे धीरे वो शेप में आ रहा है. तो वेरी सुन, with the support, with the guidance, blessings of Dr. Trivedi साहब, Dr. मार्कंडे साहब, सर करुणा, आपने ये कहा था आपके मैसेज में, महात्मा गांधी ने को किसी ने पूछा था, हम ये आचार्य जी से सुना है, महात्मा गांधी को किसी ने पूछा है गया कि आज के युग में सबसे बड़ा संकट क्या है. तो महात्मा गांधी ने जवाब दिया, बोला आज के युग का सबसे बड़ा संकट है मनुष्य का हृदय में करुणा का सागर सूख जा रहा है. तो हम चाहेंगे आप सबका सहयोग, आप सबका गाइडेंस, आप सबका ब्लेसिंग से, सपोर्ट से ये जो माँ करुणा विश्वविद्यालय जल्दी ही शुरू होगा. और उस जगह लेने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा. आजकल हमारे पास ऐसा मेरेकल्स टेक्नोलॉजी है,
तो ऑनलाइन पर हम क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं कि पहले सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा, फिर उसके बाद डिग्री ऑनलाइन पर जल्दी ये शुरू होगा। इसको आगे बढ़ाने में I appeal to all of you for your support, for your guidance, for your blessings. And आज का जो आज टुडे महाकरुणा दिवस का जो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज वही है कि इसको जो कैसे महाकरुणा का जो ऑनलाइन पर शुरू किया जाए। फिर मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए फिर से आप सबका, हमारे बीच में अनिल जी का तो बोलना ही भूल गया, जो ज़्यादा सामने होता है, क्लोज होता है ना, भूल जाते हैं लोगों को जानने के लिए थोड़ा सा डिस्टेंस रहना सो और डॉक्टर त्रिवेदी साहब का इंस्टीट्यूशन से आए हुए मेंबर्स बहुत है, वो सबको मैं बहुत आभारी हूँ। डॉक्टर त्रिवेदी साहब के ऑफिस, उनके स्टाफ कई दिनों से, डॉक्टर मार्कंडे के ऑफिस से कई दिनों से ये सब प्रिपरेशन करने में लगा हुआ था। ये सब जितने भी पोस्टर्स बनाए, जो कुछ बनाए, मैं आपको बहुत बहुत आभारी हूँ। आपके वजह से ही, हम तो बहुत बिजी था, इधर उधर चलते, समय ही नहीं था, तो आपकी कृपा से है ना, आपके करुणा से ये करुणा दिवस हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा समय लगते हैं, भारत में जब प्रोग्राम करते हैं वो भी महाबोधि प्रोग्राम करने से थोड़ा लंबा हो जाता है। प्लीज़ कृपा करके थोड़ा सा रहिए, आपका मैसेज सबको दे के जाइए। वी लाइक टू हैव योर मैसेज। थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू सो मच। May Lord bless us with all the power, capacity to work together to spread the universal compassion. सर्वप्रथम तो मैं हमारे परम आत्मीय आध्यात्मिक मित्र बौद्ध भिक्षु संघ सेना जी को जन्म दिवस की जैन धर्म की ओर से, अहिंसा विश्व भारती संस्था की ओर से, विश्व शांति केंद्र की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। अभी अभी पिछले दिनों इन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी ने इंटरनेशनल योगा डे का पुरस्कार प्रदान किया। उसके लिए मैं आप सबकी ओर से इनका अभिनंदन करना चाहता हूं। और तीसरे में, जब ये लेह लद्दाख की धरती पे उतरे थे, आप यहां तो देख रहे हो बंद कमरे के अंदर भी बगीचे के फूल खिल रहे हैं। महाराज साहब, आपसे निवेदन करूं, एक हरी पत्ती वहां देखने को नहीं थी। और इन्होंने वहां पर जिस तरह से अपना पसीना बहा करके, पुरुषार्थ करके उसको चमन किया है, मैं आप सबकी ओर से भारत सरकार से मांग करूंगा कि ऐसे संत को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जाना चाहिए। सबसे पहले मैं माफी भी मांगना चाहूंगा, आया भी लेट हूं, बीच में जा रहा हूं, उसका अर्थ ये नहीं है। आप सबके प्रति मेरे मन में बेहद सम्मान का भाव है, पर कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती है। आज महाकरुणा दिवस मनाया जा रहा है। महाकरुणा के बारे में जितना बोले कम है, पर यह भी बताऊं, भिक्षु संघ सेना जी की मेरे पे करुणा हुई थी, और करुणा होकर के विधिवत यह तय हुआ था कि आज का कार्यक्रम वर्ल्ड पीस सेंटर में होगा, लेकिन बीच में करुणा थोड़ी सी डाइवर्ट हो गई। त्रिवेदी साहब भारी पड़ गए, अब इनके पास यूनिवर्सिटी है, मैंने तो नई नई दुकान परचून की खोली है। तो ऐसे के अंदर अब ये मेरा जमा है मामला। इन्होंने जैसे कहा कि अगला वहां मनाएंगे, अब अगला ही नहीं, अगला 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 चलता ही रहेगा, क्योंकि ये 12 महीने में तो ब्याज जमा हो जाता है, दुगना कर लेते हैं ये सेठ साहब का। तो आपने इस साल का मेरा ले लिया है, इसलिए अगला महाकरुणा डे भी वही है और उसका अगला भी वहीं पर है। मैं अब आपसे कहना चाहूंगा, हम सभी शांति की बात करते हैं, सद्भावना की बात करते हैं, करुणा की बात करते हैं, और ये बात जब ऐसे विद्वान सामने बैठे हो, हमारे ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम ऑफ इंडिया यहां पर मौजूद है, हमारे अखिल भारतीय सर्वधर्म संसद के राष्ट्रीय संयोजक यहां पर मौजूद हैं, हमारे सिख समाज के
उसी संसद के प्रतिनिधि और बंगला साहिब गुरुद्वारा का प्रमुख स्तंभ यहाँ पर मौजूद है। हमारे आचार्य यहाँ पर बौद्ध धर्म के महान आचार्य यहाँ पर मौजूद हैं। मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ, सबसे ये बताइए कि करुणा का, शांति का, सद्भावना का प्रैक्टिकल रूप क्या होगा? हम अपने धर्म का कार्यक्रम मनाएं या हम दूसरे धर्म का कार्यक्रम मनाएं? प्रैक्टिकल क्या होगा दूसरे धर्म का? तो आज मैं इस मंच का सदुपयोग करते हुए भाई अनिल जी आपसे परमिशन ले रहा हूं, मात्र 60 सेकंड के लिए। एक जैन संत आपका भाई भारत की राजधानी में, भारत मंडपम में राम कथा का आयोजन कर रहा है और वो 9 दिवसीय राम कथा में पूज्य मोरारी बापू जो विश्व विख्यात हैं, जिन्होंने गरीब की झोंपड़ी से लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ तक प्रभु श्री राम के संदेश की अलख जगाई है। राम तो भारत की आत्मा है ही, कोटि लोटी लोगों के आस्था का केंद्र है ही। राम का जीवन चरित्र बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए प्रेरक है। तो उस राम कथा का निमंत्रण, ड्यूटी तो मेरी ये बनती है कि मैं आप सबके एक एक के द्वार पर पहुंचूं, पर आप समझ सकते हैं दिल्ली की दूरियां और व्यस्तताओं के बीच, तो मैं प्रतीक रूप में पहले तो बौद्ध भिक्षु संघ सेना जी से निवेदन कर रहा हूं। मुझे स्वामी जी, कोई मंत्री जी आ रहे हैं? अच्छा, किरण बेदी जी आ गए हमारे, वाह वाह क्या बात है। ये किरण बेदी जी एक ऐसा व्यक्तित्व है, जब जीवट व्यक्तित्व कहीं पर होता है ना, इस देश में एक मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ था TN शेषन, आज भी लोग उसे याद करते हैं। किरण बेदी जी को इन्होंने जिस तरह से तिहाड़ से लेकर के पुलिस क्षेत्र के अंदर जो एक लकीर खींची थी, आज भी लोग याद करते हैं। और आज हमारे मित्र भिक्षु संघ सेना जी के जन्मदिन पर तो मैं स्वामी जी से निवेदन करूंगा, पहले तो मैं उनका जैन समाज की ओर से शाल्यार्पण करके उनके जन्मदिन पर अभिनंदन करना चाहता हूं। और साथ ही में इमाम साहब, हमारे गोस्वामी सुशील जी महाराज और हमारे सरदार परमजीत सिंह चंडोक जी से और आचार्य जी से निवेदन करूंगा, 1 मिनट के लिए कष्ट करें, आप पधारे, जिससे कि मैं इंटरफेथ टीम को यहीं पर विधिवत कार्ड दे करके, एक हमारे AK मर्चेंट साहब यहाँ पर विराजे हुए हैं और जो भी हैं, तो आप पधारिए स्वामी जी, 1 मिनट, आप संकोच मत कीजिए, आप तो ऐसे कर रहे हो जैसे। लेकिन मैं महाराज जी से पूछना चाहता हूँ, ये हर वर्ष जवान होते जा रहे हैं, ऐसी कौन सी जड़ी बूटी है ले लद्दाख में? मैं देख रहा था जो बोल रहे थे 32 के 32 दांत एकदम हैं, और जिस तरह से हर साल यूं लगता है कि ये छोटे होते जा रहे हैं। तो पहले तो हम सारे इंटरफेथ संत इनका अभिनंदन कर रहे हैं, है ना? हमारे आर्म फोर्सेस का ट्रेनिंग भी जी 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 जी, थैंक यू सो मच। अब मैं दूसरे में 1 ही मिनट लूंगा। ये जैसे मैंने कहा, ये राम कथा का निमंत्रण, ये राम कथा का, इमाम साहब गोस्वामी सुशील जी महाराज तो हमारे लाइट एंड साउंड सिस्टम से पूरी दुनिया के अंदर इन्होंने रामायण का जो है, ये हमारे आचार्य जी और हमारे दो हाथ लगा लो, है ना भाई। देखिए, ये महाकरुणा दिवस पर बौद्ध धर्म के एक महान सन्यासी, जिन्हें मैं नेक्स्ट टू दलाई लामा कहता हूं, आज उनका जन्म दिवस एक प्रैक्टिकल रूप में, कि हम अपने धर्म का तो सभी करते हैं, तो एक जैन आचार्य के द्वारा राम कथा का आयोजन हो रहा है भारत मंडपम में, और पूज्य मोरारी बापू 9 दिवस के लिए राम कथा करने के लिए आ रहे हैं 17 से 25 जनवरी को। और ये सारे सर्वधर्म के संतों की टीम के माध्यम से आप सबको आमंत्रित करता हूं, आइए और हम सब मिलकर के प्रभु श्री राम के संदेश को दुनिया तक पहुंचाएं। उसी से हमारा वसुधैव कुटुंबकम का संदेश, सर्वे भवन्तु सुखिने सर्वे सन्तु निरामय का संदेश पूरी दुनिया को जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ ओम अरहम। बहनों और भाइयों, आज महाकरुणा दिवस है। मैं समझता हूं कि हमारे महान संत भिक्षु संघ सेना जी एक स्क्रूपलस प्रीचर है। आप कहेंगे स्क्रूपलस कोई खराब वर्ड तो नहीं है, स्क्रूपलस का मतलब होता है ईमानदार। तो बहुत लोगों ने कहा कि ऐसा क्यों नया शब्द खोज के लाते हैं, ऐसा नहीं है। स्क्रूपलस इज द राइट वर्ड फॉर हिम। ही इज ए स्क्रूपलस प्रीचर एंड ऑल्सो a spiritual leader. So we welcome him and congratulate him on his 60th birthday. अब बात आती है कि महाकरुणा की बात तो सब लोग करते हैं। बहुत से लोगों ने पूछा कि महाकरुणा है क्या, बता दीजिए, कंपैशन है क्या। मैंने सोचा कि आज शॉर्ट में, क्योंकि आज
माँ करुणा विश्व विद्यापीठम की शुरुआत हो रही है। घोषणा तो 5 साल पहले हो गई थी, कई कार्यक्रम भी हम लोगों ने किया, लेकिन ये पाठ्यक्रमों का निर्माण और उसे ऑनलाइन किस प्रकार हम पढ़ाएंगे उसके बारे में हमारे साथी डॉक्टर मार्कंडेय राय साहब हैं, जो कुलाधिपति हैं हमारे इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय अरुणाचल प्रदेश में, और साथ साथ हमारे डॉक्टर श्याम नारायण पांडे जी हैं जो यहाँ बैठे हैं, यह भी कुलाधिपति हैं अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नागालैंड में। इन लोगों का बड़ा अनुभव है इस क्षेत्र में। पांडे जी तो पिछले 30 वर्षों से ये जो MIMC है, महाबोधि इंटरनेशनल मेडिसिन सेंटर, उससे जुड़े हुए हैं भारत सरकार के प्राकृतिक चिकित्सा के परामर्शी होने के नाते। तो आप सबों का स्वागत है। हमारे जितने भाई बंधु यहाँ आए हैं सभी महत्वपूर्ण, एवरीबडी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। जिसका नाम लिया गया है, जिनका नहीं लिया गया है, सभी लोगों का स्वागत है। उन्हें मैं बधाई देता हूँ आने के लिए, समय निकालने के लिए। अब महाकरुणा क्या है उसके बारे में मैं बताऊँ आपको शॉर्ट में, बाद में तो कोर्स कैसे चलेगा, डिप्लोमा क्या होगा नहीं होगा, सारी बातें आपको लिख के दी गई है। जो हमने फोल्डर दिया है आपको, आप उसको पढ़ के देखेंगे। और फोल्डर भी कुछ ले आओ, 2-4 पीस बचा हुआ है तो, बाकी लोगों के पास है कि नहीं। आपके पास नहीं है ना संदीप जी? हाँ ले आओ, फोल्डर ले आओ नीचे से। तो महाकरुणा बौद्ध दर्शन विशेष रूप से महायान परंपरा का एक अत्यंत गहरा और केंद्रीय स्तंभ है। इसका शाब्दिक अर्थ है महान दया या असीम कृपा। यह केवल किसी के प्रति सहानुभूति रखना नहीं है, बल्कि समस्त जीवन प्राणियों के दुख को दूर करने के लिए एक अदृश्य इच्छा और प्रतिबद्धता है। आइए इसे हम विस्तार से जानें। करुणा और महाकरुणा में अंतर क्या है, जानना जरूरी है। केवल करुणा अक्सर अपनों या उन लोगों तक सीमित होती है जिन्हें हम जानते हैं, लेकिन महाकरुणा की प्रकृति सार्वभौमिक होती है। उसमें कोई भेदभाव नहीं होता। यह मित्र, शत्रु और अपरिचित सभी के लिए समान होती है। और साथ ही साथ एक सामान्य व्यक्ति किसी के दुख को देखकर दुखी हो जाता है, लेकिन एक बोधिसत्व, वह व्यक्ति जो बुद्धत्व की ओर अग्रसर है, महाकरुणा के कारण दूसरे के दुख को अपना मानकर उसे मिटाने के लिए तत्पर रहता है। महाकरुणा का मूल आधार क्या है, जाने हम। शून्यता और एकात्मता। बौद्ध दर्शन के अनुसार महाकरुणा केवल भावनाओं पर आधारित नहीं है, बल्कि यह प्रज्ञा यानी विजडम से उपजी हुई चीज है। जब एक साधक जो यह अनुभव करता है कि सभी प्राणी आपस में जुड़े हैं और स्व यानी सेल्फ की ओर स्वतंत्र सत्ता नहीं है, तो उसे एहसास हो जाता है कि दूसरे का दुख वास्तव में उसका अपना ही दुख है। जैसे शरीर के हाथ में चोट लगने के बाद पैर खुद ब खुद उसे सहारा देने के लिए आगे बढ़ता है, वैसे ही महाकरुणा से भरा व्यक्ति किसी भी स्वार्थ के संसार की कष्टों को दूर करने में लग जाता है। बोधिसत्व का संकल्प क्या है, ये जाने आप। महाकरुणा ही वह शक्ति है जो एक साधक को बोधिसत्व बताती है। बोधिसत्व वह है जो स्वयं निर्वाण यानी मोक्ष, निर्वाण या मोक्ष प्राप्त करने की क्षमता रखने के बावजूद तब तक पीछे रुका रहता है जब तक कि संसार का अंतिम प्राणी दुखों से मुक्त न हो जाए। महाकरुणा में प्रमुख प्रतीक अलौकिक तत्वर माने जाते हैं, जिसे करुणा का सागर कहा जाता है। महाकरुणा के अभ्यास के विभिन्न प्रकार हैं। जैसे बौद्ध ग्रंथों में महाकरुणा को विकसित करने के 3 मुख्य स्तर बताए गए हैं। सत्व आलंबन, प्राणियों के कष्ट, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु को देखकर उसके प्रति दया का भाव रखना। धर्म आलंबन, यह समझना कि दुख अनित्यता और अज्ञानता के कारण है। दूसरा है अनावलंबन, यह करुणा का सर्वोच्च रूप है, जहाँ करुणा सहज और स्वाभाविक हो जाती है। यहाँ कोई करुणा करने वाला और कोई करुणा का मात्र अलग अलग नहीं रह जाता। आज के संदर्भ में क्या महत्व है करुणा का, ये जानें आप। आज की भागदौड़ में बड़ी और संघर्षपूर्ण दुनिया में महाकरुणा की प्रासंगिकता और बढ़ गई है। यह हमें सिखाती है कि सहनशीलता क्या है, दूसरों की गलतियों को अज्ञानता मानकर उन्हें क्षमा करना, अहिंसा केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि वैचारिक अहिंसा का पालन करना, साथ ही साथ परोपकार को भी जानना पड़ेगा, बिना किसी फल की इच्छा के दूसरों की सहायता करना। संक्षेप में
माँ करुणा एक आध्यात्मिक शक्ति है जो संकुचित मैं और मेरा की सीमाओं को छोड़कर हमें पूरी मानवता और प्रकृति से जोड़ती है। यह बुद्ध का हृदय है। दलाई लामा अक्सर कहते हैं, यदि आप दूसरों को खुश रखना चाहते हैं तो करुणा का अभ्यास करें। यदि आप स्वयं खुश रहना चाहते हैं तो भी करुणा का अभ्यास करें। माँ करुणा के विचार नहीं बल्कि एक जीवंत अनुभव है जो संसार को शांति और प्रेम के सूत्र में पिरोने की क्षमता रखता है। बहनों और भाइयों, peace, mercy and tolerance. These are three important aspects where we must remember why you should be merciful, why you should be tolerant, and above all, why should you become compassionate. So these are very important points. With these in mind, we have decided to launch a certificate and a diploma course online under the aegis of the Mahakaruna Vidyapitham, which will be headquartered in Leh Ladakh, but the satellite office will always be there in Delhi. And with the help of all the resource persons available here, all of you are welcome and requested to throw yourself into a new environment with full of zeal and enthusiasm so that the world citizenry and the Indian citizenry could use our knowledge and your knowledge regarding compassion, the universal compassion, to the fullest extent of your abilities. Thank you and Jai Hind. May peace prevail on this Mother Earth. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस महाकरुणा दिवस के मौके पर रेस्पेक्टेड रिलीजियस लीडर्स, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट और हमारे बहुत ही परम आदरणीय भिक्खु संगासेना जी का आज जो जन्मदिन है वो महाकरुणा के दिवस के रूप में मनाते हैं। हर साल की तरह इस साल भी। सबसे पहले मैं अपने परम आदरणीय भिक्खु संगासेना जी को मुबारकबाद पेश करता हूं उनके जन्म दिवस पर। उनकी सेहत के लिए दुआ करता हूं और उनकी उम्र में इजाफा हो उसके लिए भी दुआ करता हूं। मैंने हमेशा से एक बात कही कि मैंने भगवान बुद्ध को नहीं पढ़ा, उनके विचारों को भी नहीं पढ़ पाया, लेकिन अगर भगवान बुद्ध के विचारों को समझने के लिए अगर मैंने समझा तो मैंने हमारे संगासेना जी के साथ रहकर उसको समझने की पूरी कोशिश की। इनकी सरलता, इनके अंदर करुणा, बहुत से लोग बोलते हैं कि करुणा होना चाहिए, हो सब में है, सब इंसान है, करुणा तो सभी में होती है। लेकिन मैं जब देखता हूँ, जब से ये इसकी शुरुआत हुई है, जब वहाँ कुछ भी नहीं था, पहले दिन से जब से उस जगह ली गई, फर्स्ट डे से मैं इनके साथ, हम सब मिलकर एक साथ रहे और आज जिस तरह से उनकी मेहनत और जो उनकी कोशिशें हैं इंसानियत के लिए, उसे वो पूरा कर रहे हैं। मैं अक्सर हमेशा कहता हूँ कि हमारे सबके धर्म ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारी पूजा पद्धति सबकी ज़रूर अलग हो सकती है, हमारे इबादत करने के तरीके ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारे पंथ ज़रूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है इंसान और इंसानियत है। इंसानियत का जो धर्म होता है वो यही होता है करुणा, दया, रहम करना, माफ़ करना, एक दूसरे से प्यार करना, एक दूसरे का सम्मान करना, यही तो है। तो इस इंसानियत को बरकरार रखना चाहिए। आज के इस मौके पर हम सब यही पैगाम और यही संदेश देते हैं कि हम सब एक ही हैं और एक होकर ही हमें सबको मिलके चलना होगा। हमारे परम आदरणीय गोस्वामी सुशील जी महाराज जी यहाँ बैठे हैं। भारतीय सर्वधर्म संसद इसीलिए बनाई गई थी। मैं उसका फाउंडर मेंबर भिक्खु संगासेना जी, हमारे परम आदरणीय भाई सरदार परमजीत सिंह चंडोक जी, ये पूरी टीम है, मर्चेंट जी, तमाम ये जितने लोग हैं सब उस भारतीय सर्वधर्म संसद के हिस्सा है। भारतीय सर्वधर्म संसद का भी मकसद सिर्फ यही है कि हम सब एक होकर इसको, हम इंसानियत का जो पैगाम है उसे आम करना है। इसी के लिए सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमें सबको आगे इसी तरह से बढ़ता रहना चाहिए। चूँकि नमाज का समय था, मैंने इनसे रिक्वेस्ट कर लिया था कि मुझे जल्दी जाना है। बहुत शुक्रिया अनिल जैन साहब, चूँकि और तमाम सभी लोगों ने
यहाँ आप आए, सबको मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत शुक्रिया, सबके लिए मेरी दुआएं, शुभकामनाएं। और 7 जनवरी हमेशा से हम इसी तरह से नया साल मनाते हैं। हमारे संगा सेना जी कह रहे थे कि भाई मैं 1 तारीख को इमाम साहब नहीं आ सका, मेरी मजबूरी रही, हर साल आते हैं। मैंने कहा नहीं, आज का दिन भी नए साल से ही शुरुआत है। और आप स्वस्थ रहें, हमेशा इसी तरह से लोगों की भलाई के काम करते रहें। मैंने तो आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं देखा जो इनसे प्यार नहीं करता हो और या ये उनसे प्यार नहीं करते। सभी से ये प्यार करते हैं, सब इनको प्यार करते हैं, सभी को लेह लद्दाख की दावत देते हैं और सब लोग हर साल वहाँ जाते हैं। और वहाँ इनका हर साल जब भी जाके देखता हूँ, हर साल एक नई बिल्डिंग बनी मिलती है, हर बार एक नया काम देखने को मिलता है। ये खुशी होती है हमें। हम सब मिलकर इसी तरह से एक दूसरे के साथ मिलके चलें, एक दूसरे का सहयोग करें और इसी तरह से सब आगे बढ़ें। यही हमारी दुआएं, यही शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। आदरणीय दोस्तों, सबसे पहले माननीय भिक्खू संघ सेना जी को जन्म दिवस पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और महाबोधि दिवस जो हर वर्ष मनाते हैं, मुझे भी जाने का मौका मिलता है। अभी भारतीय सर्वधर्म संसद की बात आई तो कुछ याद आ गई मुझे। संघ सेना जी और मैं, इमाम साहब और लोकेश जी, हम सब लोग स्पेन में थे, इंटरफेथ प्रोग्राम में गए हुए थे। और एकदम से करुणा जब याद आई तो बीमारी फैल गया है। यहाँ न्यूज़ मिला हमको तो पहला पेशेंट वहाँ था। वहाँ से हम इंटरफेथ का सब बोलने के बाद हम भारत आए थे। माननीय दलाई लामा जी महाराज ने 2006 में उनके जन्मदिन पर कुछ इंटरफेथ लीडर्स को ताज में बुलाया था खाने के लिए, भोजन पर। और वहाँ हम लोग इकट्ठा हुए थे। हमारे आदरणीय अग्निवेश जी महाराज उस वक्त बहुत एक्टिव थे और इंटरफेथ के लिए उन्होंने हम सबको जोड़ा था। 2006 में इसकी स्थापना की थी। मर्चेंट साहब से ला रहे हैं, पुष्टि कर रहे हैं। और उसके बाद 1 साल के बाद ही ये दायित्व स्वामी जी ने मेरे को दे दिया, इसका कन्वीनर बना दिया। बड़ा इम्तिहान का समय था। चंडोल जी बैठे हैं, इलियासी जी निकल गए, लोकेश जी, एक टीम हमने बनाई थी। और उसके बाद ही संघ सेना जी हमारे साथ जुड़ गए थे। और संघ सेना जी ने और हमारी टीम ने पूरी दुनिया में इस मैसेज को दिया कि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ से हर वक्त, हर जाति, हर धर्म के लोग मिलकर रहते हैं और संकट काल में अपने देश के साथ खड़े हो जाते हैं, बिना ये सोचे कि उनका धर्म और रिलीजन क्या है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि संघ सेना जी आज जहाँ पहुँचे हैं, उनके संघर्ष को हमने नज़दीक से देखा है। इमाम साहब चीफ इमाम हुए तो उस संघर्ष को भारतीय सर्वधर्म संसद ने देखा है। इसी तरह से लोकेश मुनि जी की आज बुलंदियां हैं तो उसका बहुत बड़ा योगदान भारतीय सर्वधर्म संसद को है। और इसको करते करते ये इतना बड़ा हो गया है। मर्चेंट जी बैठे हैं, हमारे थॉमस साहब बैठे हैं। जब थॉमस साहब तो ऑलरेडी इस काम को कर रहे थे, और फिर जितनी जमायतें थीं इंटरफेथ की, उनको इकट्ठा करने का कार्य किया। मार्कंडी जी भी हमसे जुड़े और सब लोग जुड़े और बड़ा अच्छा लग रहा है। किरण बेदी जी हैं, उनको भी एक बात याद दिलाता हूँ, वो भी यही रिलेटेड है। जब वो जेल का दायित्व उनको मिला था तो उन्होंने एक अपील छापी थी कि जेल में बहुत कठिनाइयाँ हैं और सब ऑर्गेनाइजेशन को एक पत्र लिखा था कि हमारी सहयोग के लिए संस्थाएं आएँ। तो किरण जी में पहला व्यक्ति था जिसने आपको लेटर लिखा कि हम आपके साथ काम करेंगे। तो दूसरा, जब अगले दिन ही उन्होंने समय दिया और मैं गया, तो मैंने जब कहा कि मेरी तो आर्ट एंड कल्चर फाउंडेशन है, मैं तो सांस्कृतिक प्रोग्राम करने वाला आदमी हूँ, तो उन्होंने कहा कि उस वक्त मेरा सन्यासी नहीं था,
कि सुशील जी आप क्या करेंगे, तो कैदियों का क्या भला हो सकेगा। तो मैंने कहा मैं फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया पर एक कार्यक्रम करूंगा। 4 जेल थी उस वक्त, चारों जेलों में करेंगे। शोभराज भी था, बहुत सारे लोग थे कि किरण जी को साथ देकर हमारी ऑर्गेनाइजेशन पहली ऑर्गेनाइजेशन थी। बीच में बहुत बड़ा गैप है, हम नहीं मिले, मगर बुलंदियों पे आप गई, आपकी चर्चाएं होती रहीं। इसको भी मैं इंटरफेथ से ही जोड़ रहा हूं, अपने ग्रुप से भी जोड़ रहा हूं। मैं अंत में आप सब से, क्योंकि द्विवेदी जी का जुड़े, सब लोगों से जुड़े हैं, अभी हमने एक एक धर्म से 10-10, 12 बार स्पीकर तैयार किए हैं। कभी मैं नहीं जा सकता, कभी लोकेश जी नहीं जा सकते, कभी कोई और नहीं जा सकता, तो वो छोटा पड़ गया क्योंकि दुनिया में हम जा रहे हैं। तो दुनिया में जा रहे हैं तो भारत से इंटरफेथ की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी नई पार्लियामेंट में हमको अभी बुलाया, तो हम सब लोग गए थे। दुनिया में कैसे पीस की बात कर सकते हैं, धर्म को एक तरफ रखकर इंसानियत को आगे ले जा सकते हैं। उसी कड़ी में, क्योंकि संघ सेना जी का जो योगदान है हमने बढ़ते हुए देखा है, आज प्रधानमंत्री जी ने उनको सम्मानित किया है, तो ये उनका कर्म है, इसको और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। हम छोटे छोटे प्रोग्राम में संघ सेना जी जाते थे, बड़े बड़े में जाते हैं, तो एक मिशन जो बनाया, जो मैंने देखा उनका आश्रम, तो ये हमारी यादें हैं। अग्निवेश जी तो नहीं रहे, मैं सबको इनवाइट करने भी चाहता हूँ, आज सबको निमंत्रण भी भेजूंगा। 21 तारीख को रंग दे बसंती एक कार्यक्रम हम कर रहे हैं भारतीय सर्वधर्म संसद की ओर से, और हम एक पीस मार्च कर रहे हैं। और जो मेरी ख्वाहिश थी, जो मेरी जगह है ग्रेटर नोएडा में, उसमें ऑलरेडी अलग अलग धर्मों के मंदिर हैं, और हम 21 तारीख को इंटरफेथ हाउस भारत में जो बनाने का सपना देखा था, उसकी नींव डाल रहे हैं। और वो लोग जो उस नींव में थे, संघ सेना जी भी रहेंगे और सभी हमारे साथी रहेंगे, और अब तो बहुत लोग बढ़ गए हैं, कोई गोवा से, कोई कहीं से, सब अलग अलग धर्मों के हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैं आपको आमंत्रित करूंगा, आप प्रोत्साहित करने के लिए, क्योंकि 80 बरस प्लस हो गया, ये बागडोर जो हमने इकट्ठी की है, वो किसी न किसी साथी को देना चाहते हैं, ताकि वो साथी इस डोर को, इस पोजीशन को जो दलाई लामा जी के मैसेज से भारत में शुरू हुआ, आगे बढ़ता जाए। मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरा नंबर अभी नहीं था, मगर ऐसे मैंने देखा कि इमाम साहब के बाद मेरा नाम है, मुझे भी उसी कार्यक्रम में जाना है और हमारे चांडोक जी को भी जाना है। तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ और बारंबार प्रणाम करता हूँ कि भारत में बुद्ध की, युद्ध की नहीं, बुद्ध की ज़रूरत है। आओ मिल के बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चले। जय हिंद, जय देश। गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरा हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू। सब जने मिलके हम लोग हैप्पी बर्थडे इनको मनाएं, कहें हैप्पी बर्थडे गुरुजी, हैप्पी बर्थडे। अनिल जी का आपका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने याद किया और मुझे यहाँ बुलाया। मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि जब से मैं गुरुजी के पास हर टाइम यूनाइटेड नेशन योगा डे वाले दिन जून में इन्होंने पहले जब इनवाइट किया, तब से और पिछले साल तक मैं लगातार इनके पास जाती रहती। एक बारी आप लेह लद्दाख और इनके महाबोधि सेंटर में जाओ, आप करुणा से भर जाते हैं, क्योंकि हर पेड़ बोल रहा है इनका प्यार और करुणा के। फ्रूट ट्रीज, एक एक फ्रूट ट्री जो डिपिक्ट करती है कि किस प्यार से ये बने हैं। तो मैं इसीलिए अपनी तरफ से हैप्पी बर्थडे करने आई हूँ और धन्यवाद करने आई हूँ, और ये विश्वास दिलाती हूँ कि इस जून में फिर से मिलेंगे। और मैं ढूंढती रहती हूँ कि कौन से ऑफिसर इनके पास अच्छे जाएं, वहाँ जो महाबोधि सेंटर में जाएं और इनके साथ और सहयोग करें। तो मुझे खुशी अनाउंसमेंट करने के लिए कि इनके पास इस वक्त एक बहुत अच्छे ऑफिसर पहुँच रहे हैं एज चीफ सेक्रेटरी। उनका नाम है श्री शूरबीर सिंह। उस ऑफिसर ने मेरे साथ पांडिचेरी में बहुत अच्छा काम किया, इसलिए मुझे पता है, और उसने मैंने उसको पहले से ही बोल दिया है कि अब मैं जून में आ रही हूँ, तो तुम और मैं और गुरुजी के पास जाकर मिल के काम करेंगे। तो गुरुजी, आपका हैप्पी बर्थडे। आपने मुझे याद किया, क्योंकि आपको मिलना ही बहुत बड़ा एक आशीर्वाद है, और करुणा की तो एकदम भावना
अंदर फिर से जागती है आपको देख के। धन्यवाद। On this beautiful, well-designed program of Mahakaruna Divas, let me take this wonderful opportunity to extend my heartiest congratulations to Guruji. Let's give a big hand to Guruji on his birthday. Sir, heartiest congratulations. I would also like to extend my heartiest thanks to Anil Sharma ji for inviting me here and giving me this beautiful opportunity to be part of this program. Let me start with two lines, my favorite lines, कि सभी दिशाओं से शुभ सुंदर भाव विचार भरे नित अंतर पुण्य धरा बन जाए स्वर्ग ये मेरे यत्नों से करुणा कर. What I'm trying to tell you here, whether it is north, south, east or west, whether you're in India or abroad, whether you are on the top of the hill or you're standing at a seashore, whether you are in a lush green garden and looking at some colorful flowers, or maybe looking at the most beautiful woman on earth, the fact is there are two things which are much more beautiful than what you can actually see with your naked eyes. And these two things are your thinking and your feelings. And the best part is that both the things are right within you. You don't even need eyes for that. On this very beautiful, auspicious Mahakaruna Divas, let's pray, hey Lord, give me good thinking, give me good feelings so that I can do good deeds, and through my good karmas, I would love to convert this earth into heaven. This is what I believe. I'm sure you will also believe in the same. When I say Karuna Divas, Karuna, very simple meaning Karuna, ke do your good karmas to see the unnati, progress. कर्म से करुणा, कर्मों से बना है कर और बाकी उन्नति से बना है उना. So you can well imagine this word must have been designed many hundreds of years back, karuna, that if you are doing a good karmas, the progress is bound to be there. So my dear friends, need not to give more explanation for this word. I am recollecting two more lines कि काम शुरू करते नहीं भय से नीचे लोग, मध्यम तजते बीच में देख विषम संयोग, पर उत्तम वे लोग जो हर दुर्गम पथ झेल, दृढ़ता से बढ़ते कदम बाधाओं को ठेल. And before I give you the meaning of these three lines, let me admit I belong to films, television, media, art and culture fraternity, and this is one business where we have never ever bothered to divide the society on the basis of caste, creed, religion, region, status, color, rich, poor, small, big, never. We have believed only in one dharma, one religion, and that is called nation building. That's what we believe in. But I still have gone out of way to divide the society on the basis of these three lines which I have just spoken. कि काम शुरू करते नहीं भय से नीचे लोग. Who are the people who belong to the downtrodden community of the society? People who have no karuna, people who have no compassion, no feeling for society, no feeling for people, no feeling for country. I have segregated, divided these people into C class. They are the black snakes of the society. They don't grow, they will never let you grow. They don't work, they will never let you work. मध्यम तजते बीच में देख विषम संयोग. Who are the people who belong to middle class? People with little push and pull may try to get into this kind of a business, but minute they see bit of the hindrance, they try to run away from the battlefield. मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए, छोड़ दे, रहने दे, हो जाएगा, कर लेंगे, होता ही नहीं, कल सही. I've categorized all these kind of people into the B class. पर उत्तम वे लोग जो हर दुर्गम पथ झेल, दृढ़ता से बढ़ते कदम बाधाओं को ठेल. Who are the people who belong to A class? People who have a zest, enthusiasm, excitement. They want to do something for the humanity, something for the people, something for the community, something for the nation. I have categorized all these kind of people into the people of first class. What a pleasure, what a honor today, my dear friends, that today not one but almost 100 people today in this auditorium who are
who all belong to the community of first class. This whole auditorium, this room is actually right now bubbling with lot of energy. I don't know if you can see or not, but I can. I can see this energy which is flowing into this room, and this energy we must all carry back home, carry back for months and for years together to be a compassionate, helpful, supporting and wonderful Indians, to spread the word of Karuna to not only in India but to rest of the world. Yes, before I leave this platform, 2 lines I would love to repeat here कि स्वयं विधाता होवे मानव, अंतर में विश्वास जगाओ, चलो न मिटते पद चिन्हों पर, अपने रस्ते आप बनाओ, अपनी आत्म ज्योति पर निर्भर, अपने सूर्य स्वयं बन जाओ. The best part is God has been so kind. करुणा तो वहीं से शुरू हो रही है. He's been so kind that he has bestowed upon us all those powers which he possesses himself. G-O-D, power to generate, power to operate, and power to destroy. All these powers are with you and me. It's entirely up to us today that which power we will love to use for which purpose. So it's entirely up to you, my dear friends. God has given you enough power to actually do something good for this world. With all these words, thank you very much once again for inviting me here, and wish you a beautiful and a wonderful birthday, sir. And thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat. Good afternoon. Good afternoon. Namaskar. Respected Reverend Bhikkhu Saxena ji, Professor Priyaranjan Trivedi ji, Goswami Sushil Mani ji, Dr. Kiran Bedi ji, I think she has gone, Dr. Thomas, Dr. A.K. Merchant, Mrs. Sunaina Mohan, Naeem Firoz ji, General Yash Moore, Professor Goswami ji. I am thankful to Jan Sahab for giving this opportunity to speak before many important people will leave this hall because of their busy schedule. First of all, let me say that I am really pleased and honored to speak on a value that world needs now more than ever: universal compassion. Lot has been told about it. Professor Trivedi explained, and many of the previous speakers talked about what is universal compassion. Just to summarize a few lines, I will proceed about further announcements. And before that one, let me also join and echo with my previous speakers a very, very happy birthday to Guruji, Reverend Bhikkhu Saxena ji. Universal compassion is ability to feel concern, empathy and kindness not only for the people we know, that is what was told before, but for all living beings, regardless of race, religion, nationality, gender or social status. It reminds us that beyond our differences, we share the same hopes, fear, and desire for happiness. We are one family, Vasudhaiva Kutumbakam. Is the ethos today which India has promoted for long, and now time has come when we have to practice. People know what has been told, people know. Knowledge about these things are not scarce today. Issue is how to translate into reality in our life. Vasudhaiva Kutumbakam, everybody talks, we are one, we are not different, we are not divided. But how to? There must be some process, there must be some training, there must be some values which we have to bring in our life, and then we can think of
universal compassion. If I summarize universal compassion, I always say emotion with action is compassion. Emotion with action for the welfare of everybody is compassion. And I always feel I had addressed this one in 1 minute when I received the World Peace Award by Global Peace Foundation in Manila. I had told vision without action is just a dream. Action without vision is waste of time. But vision with action will transform the whole world. Today we are here to see that how the vision of Sanghasena ji and all spiritual gurus earlier we can translate into reality. Otherwise it will remain just like a dream or wastage of time. So we can quote many of the people, great religious people, Buddha, Mahatma Gandhi and Mother Teresa, name it. There are many examples who have practiced compassion. But example we not have how to practice in our life. How to become compassionate is most important. And I believe that if you bring in your life only 3 words, you can become most compassionate. That will be the beginning. 3 words to remember. And if you go leave this hall, if you remember and practice those from day to day, you will be a transformed person. One is learn to give. देना सीख जाए. जो भी आपके पास हो, पैसे का नहीं, जो आपके पास हो वो देना आप सीख जाए. आप स्पिरिचुअलिटी की पहली सीढ़ी चढ़ जाते हैं. अगर 3 सीढ़ियां अगर स्पिरिचुअलिटी की हैं, कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई स्पिरिचुअल नॉलेज की जरूरत नहीं है. आप देना सीख जाएं. जो भी आप दे सकें समाज को, देश को, दुनिया को, देना सीख जाएं. पहली सीढ़ी आप स्पिरिचुअलिटी की चढ़ गए. दूसरा है सीढ़ी है अनकंडीशनल लव. प्यार करना सीख जाएं. केवल मानव से नहीं, जीव जंतु वनस्पति सबसे. विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन विथ ऑल लिविंग बीइंग प्यार करना सीख जाएं. लव फॉर ऑल, हेटेड फॉर नन. अब तीसरी हाईएस्ट सीढ़ी है स्पिरिचुअलिटी की जो आपको मोस्ट कंपैशनेट बना देगी. सेवा करना सीख जाए. जो बड़े बड़े महात्मा जिसे संघसेना जी कर रहे हैं, वैसा सेवा करना सीख जाएं. अगर सेवा आपके जीवन में आ गया तो आप स्पिरिचुअल भी हो जाएंगे, कंपैशनेट भी हो जाएंगे. Now time has come when I have been given a big responsibility, which Jain Sahib Trivedi has already mentioned about our thinking for last many years about opening an university on universal compassion. As far as my knowledge and our knowledge goes, we have number of universities on peace in India and abroad also. From New York to Costa Rica to Pune, many. But I don't remember, and we don't remember, that there is any university on universal compassion. Time has come when we want to promote peace, harmony, Vasudhaiva Kutumbakam, we have to become compassionate. That has been proven, that has been discussed by many of the previous scholars also, and for many years. Today, we are here to announce which was coming and which came in declaration 2 years before in Leh Ladakh when we were celebrating International Yoga Day on 21st of June 2 years before, and this year also when we were commemorating the Nagasaki and Hiroshima bombing. We say that time has come when we want to survive and unite the whole world, we should have a teaching and preaching of universal compassion. And for that, there must be some institution. And today's time, in this context, university and education institution play a very vital role in establishing and teaching universal compassion. That is the justification for the university.
Universities are not merely center for acquiring degree, they are spaces where character, values, and social responsibility are shaped. By integrating compassion into education, university help create not just a skilled professional, but responsible human citizens. When we are talking about Vasudhaiva Kutumbakam, we have to bring value-based education, based how we can become peaceful, and this originates from yourself. Once we become compassion, other will become compassion also. And for that, we have introduced 3 structured online courses, and those courses are, first one we have decided, this is open for still comments and suggestions from all of you. One is diploma course in compassion. That is a 1-year course where there will be 5 papers. It has been circulated to all of you, and today and further also in coming weeks, you can feel free to give any suggestion, guidance, any inclusions or deletion from those courses of diploma courses in compassion. I will not take much time to read all these because this paper has been circulated. Another is certificate courses in compassion. That will be 6-month course, and there will be 3 to 4 papers, and syllabus has been designed, and modules, teaching modules have been developed, especially by Professor Trivedi ji and Confederation of Indian Universities staff. So for that one, and for this structure, online courses which will start soon, to just test also how much people have interest, what type of people we are attracting to, so that we can build on that one slowly to have a regular courses in that university in Leh Ladakh, whose satellite, or you can say that field office will be in New Delhi in Parivan Complex. And to move this, you can say movement, I will say this university will be a movement, because this compassion will take the form of a movement, otherwise it will not be successful. For that movement, we have thought that there should be an advisory committee on universal compassion, where we can refine the courses, we can see what new courses can be adopted, what type of people can be attracted, not only from Buddhism, Jainism, Hinduism, from all the faith and interfaith groups, to see that how much attraction, how much people are getting, so we can aid those one, and then a comprehensive blueprint and a roadmap will be chalked out to establish a full-fledged university in MIMC, Mahakaruna International Meditation Center. And some may think that compassion is idealistic and impractical, but remember, every ocean is made of drops. A kind word, helping hands, and stand against injustice, these small acts creates powerful ripple of change. Universities that inspire such action help build a more peaceful society. In our daily life, compassion can be practiced in a simple ways. I'm just going to practical, because we are talking about Vasudhaiva Kutumbakam. Did we realize that one? No. That's why we thought, how Vasudhaiva Kutumbakam be realized? What type of values, what type of institution, what type of curriculum, what type of policies are required, so that we can move towards uniting the whole world. That's why it is very necessary that you should test yourself, whether you are becoming more compassionate or you are not improving at all. And in daily life, compassion can be practiced in simple ways. Being patient with mistakes. This first you can take, being patient with mistakes. If somebody does mistake, what Krishna says, when Rukmani asked Krishna, why one should not be angry? He said, because you are punishing yourself for the mistake of others. What is anger? Anger is you have not done anything wrong. For somebody else's mistake, you are punishing yourself. And that's why one should not be angry. So,
being patient with mistakes of others. Second commandment, please listen to carefully so that you can start practicing. Now we are changing the world, we are thinking to change the world. Second thing, listening without judgment. Don't judge others, otherwise you will be judged. That's the way the Bible says. Respecting different opinions is the third commandment to become more compassionate. And last but not least, and helping those who struggle silently. You have to be very kind with everybody, and no one should suffer. Sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramya, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschid dukh bhag bhavet will make you more compassionate. Universal compassion does not mean accepting wrongdoing. That is also very clear. It means responding with fairness, humanity, and wisdom rather than anger or hatred. It means choosing understanding over conflict and unity over division. As students and citizens of the world, we must carry forward the values instilled in us by our educational institutions. The future will not be shaped by intelligence alone, but by empathy, ethics, and moral courage. I would like to include by saying, this is my conclusion, when universities teach compassion, society becomes kinder. When we teach compassion, society will become kinder. When compassion becomes universal, humanity truly progresses. And that is the aim of this university, and that's why we are thinking that time has come when many things are failing. We should go for a university. Anybody who agrees, you can raise hands. University should be open or not. If you do not want, later on you can say no also. I think I can see everybody is supportive of opening the Universal Compassion University. With these courses is still is debatable. You can comment on that one today, tomorrow, maybe week or so. Any time is open. It's open, and anybody from this hall and beyond also feel that you can be useful in the advisory council. You can give some time and to energy, and you have interest in that one. You are most welcome to propose your name to Mr. Anil Jain ji, Professor Trivedi ji, or Bhikkhu Sangh Sena ji for being the member of the advisory council. With these few words, I see that there are so many speakers. I stop here. Any question can be asked later on, but these 2 courses or 3 courses can be, if you accept it, it is adopted. Thank you. Thank you very much, sir. And at the outset, I would wished very happy birthday to Bhikkhu Sangh Sena ji. हमारी एसोसिएट कई देखते हैं तो यू आर फिल्ड विद एनर्जी, एंथुजियाज्म एंड स्पिरिचुअलिटी. और इनकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मेरी तरह इन्होंने थोड़े से साल फौज में किया, मैंने पूरी लाइफ फौज में दे दी, लेकिन हमारी थॉट प्रोसेस बिल्कुल एक जैसी है. इसीलिए जब मैं पहली बार इनको लद्दाख में मिला तो ऐसे मिले जैसे कि हम शायद पिछले जन्म में एक ही घर में पैदा हुए या एक ही माँ के द्वारा पैदा हुए. सो आई हैव बीन एसोसिएटेड विद हिम, एंड आज के दिन टू विश हिम हैप्पी बर्थडे. ही लुक्स इन गुड हेल्थ एंड दैट इज़ अ गुड थिंग फॉर ऑल ऑफ अस. सो सर, यू मस्ट लिव लॉन्ग and keep inspiring people, and Mahakaruna, Mahabodhi meditation center, and the ease with which he receives people from other faiths. ये अगर भारत सीख जाए तो मैं कहता हूँ हमारे देश की सारी समस्याएं खत्म हो सकती हैं. टुडे वी नीड पीपल लाइक हिम. और मैं जब बात करता हूँ, मैं बहुत इंटरफेथ हार्मनी की बात करता हूँ, खुल के बात करता हूँ, निडर और निर्भीक होकर बात करता हूँ. आज यही चाहिए हमें. We need to get back our India where we love each other without conditions, without
लोगों को उनकी वेशभूषा से वो इबादत कैसे करते हैं, कपड़े कैसे पहनते हैं, दाढ़ी है या नहीं है, टोपी कैसी लगाते हो, कोई मैटर नहीं करता है. इफ यू आर एन इंडियन, लव एवरी इंडियन विद द सेम काइंड ऑफ लव, अफेक्शन एंड पैशन. सो थैंक यू वेरी मच सर फॉर इन्वाइटिंग मी हियर. एंड दिल्ली का ट्रैफिक, गुड़गांव का ट्रैफिक में यहाँ आना अपने आप में एक जो है वॉरियर वाला काम है. सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू एवरीवन हु इज हियर. जय हिंद एंड वंदे मातरम एंड थैंक यू वेरी मच सर. जय हिंद सर. थैंक यू. Well, it's a very important day, the महाकरुणा दिवस. और मैं 1-1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा क्योंकि मुझे भी हमारी शुभकामनाएं हमारे गुरुजी भिक्खु संघ सेना को भेंट करना था. तो आप लोग ने अभी सुबह से जो कार्यक्रम चल रहा है, आपने बहुत अच्छी बातें सुनी और मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है कि इस प्रकार का सकारात्मक सोच जितना दूर से दूर तक हम पहुंचाए, उतना ही जल्दी एक कायाकल्प और परिवर्तन आ सकते हैं. लेकिन वास्तविकता भी हमारे सामने है जिस पर हमें चर्चा नहीं करनी चाहिए. इसलिए मैं सिर्फ ये एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूँगा और आप सबको हृदय से आभार और धन्यवाद. बस एक आधे मिनट के लिए, 30 सेकंड के लिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा. ये हमारी एक छोटी प्रार्थना है जो बहाई लोटस टेम्पल, यहाँ पर भी जो लोग आते हैं तो ये शांत वातावरण में वो हर प्रकार के पवित्र गुण का एहसास करते हैं. और महाकरुणा वो हमें आज अत्यंत इसकी आवश्यकता है. कहो, ये बहाई धर्म के संस्थापक भगवान बहाउल्लाह की प्रार्थना है. कहो, हे परमेश्वर, मेरे मस्तक को न्याय के मुकुट से और मेरे ललाट को करुणा के आभूषण से विभूषित कर दे. तू सत्य ही वरदानों और अक्षय संपदाओं का अधीश्वर है. तो मेरी ये छोटी सी प्रार्थना और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशा करता हूं कि जो आध्यात्मिक शक्ति यहाँ हम अनुभव कर रहे हैं वो दूर दूर तक, क्योंकि आज मैं देख रहा हूं कि पूरे विश्व से लोग भारत को आमंत्रित कर रहे हैं, चाहे वो मध्यम अमेरिका का जो घटना हो, साउथ अमेरिका में हो, अफ्रीका में हो या एशिया में, भारत की ओर उन्मुख होकर कह रहे हैं कि भारत कैसे हमारी सहायता करे ताकि एक घोर परिवर्तन ला सके और फिर से इस संसार को स्वर्ग का प्रतीक बना सके. बहुत बहुत धन्यवाद. Changju Simjo Rinpoche Maji Panam Jinju Che Jewa Nyamba Meba Yang Kone Kone Peba Show. Most Venerable Param Adarniye भिक्खु संघ सेना जी का संस्था और विशेषकर भारतीय संस्था इकोलॉजी और एनवायरनमेंट, दो संस्था के माध्यम से गत वर्ष भी मुझे मेहरौली में आज के दिन की कार्यक्रम जो दशा शब्द अभी आप सब लोगों के बीच में प्रकाश डाला है, सभी हमसे ज़्यादा विद्वान और अनुभविक लोगों ने, मैं आप लोगों के मध्य, मेरी अपनी मातृभाषा नहीं है, ये आपकी भारतीय भाषा है, अंग्रेजी मेरी भाषा नहीं है, वो थोबुए भाषा है, परंतु मेरी भाषा बोटी भाषा, जो भाषा एक बहुमूल्य भाषा, भारत के ही परंपरा और संस्कृति से लिए हुए संस्कृत के माध्यम से अनुवाद और देवनागरिक से लिए हुए
भाषा जो मैं और हमारे हिमालयन लद्दाख से लेकर पूरा प्रयोग करता है। मैं सबसे पहले बहुत बहुत बधाई साधुवाद देना चाहूँगा परम पूजनीय गेलोंग भिक्खू संघ सेना जी का। भले आपने कहा मनुष्य के जीवन का जन्म मेरे लिए महत्व नहीं है, परंतु जब मनुष्य का जन्म ही नहीं होगा तो ये कार्यक्रम भी प्रारंभ नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपको अपने अंतिम हृदय से और संपूर्ण तिब्बती समुदाय की ओर से और परम पूजनीय दलाई लामा जी के आशीर्वाद से आपको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा। जहाँ तक आज के कार्यक्रम कोई सामान्य कार्यक्रम नहीं है, एक तथागत बुद्ध के उपदेश आफ्टर द इनलाइटनमेंट ऑफ द तथागत बुद्ध, आफ्टर द सिद्धार्थ टू बिकम द गौतम बुद्ध शाक्य मुनि, निराजना के निकटतम में तपस्या करने के बाद जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, which was enlightened, the Buddha has received. The achievement of the Tathagat Buddha, Shakya Muni, near about 335 volumes of the Tathagat Buddha's teaching, which we call Kangyur and Tengyur, and same thing in the Pali Grantha. And the main gist of the Tathagat Buddha's teaching, Changchuk Sem. In Tibetan language, in our body language, Changchuk Sem केवल 7 शब्दा वाली है, केवल 7 शब्दा वाली, only 7 words, Changchuk Sem. In English, or we can say in Sanskrit, एक्चुअली करुणा शब्दावली तो संस्कृत के शब्दावली है, केवल 10 शब्द है, केवल 10 शब्द करुणा गिन लीजिए। ये 10 शब्दावली बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन डेप्थ। आज हम एक 10 शब्दावली के साथ चर्चा कर रहे हैं। वी आर नॉट डिस्कसिंग such small things. We are discussing here about the 10 valuable words, the words. परम पूजनीय भिक्षु संघ जी का यात्रा, जीवनी यात्रा, 68 years यात्रा कोई सामान्य यात्रा नहीं है माननीय जी। आपके जीवन के यात्रा केवल आप एक व्यक्तिगत के जीवन का यात्रा नहीं है, वो भी तथागत बुद्ध के आपको आशीर्वाद से, पूर्व जन्म से आपको आशीर्वाद से जन्म के आपके जो तपस्या जो है उसका फल आप आज लोगों के हित के लिए करुणा के माध्यम से सेवा कर रहा है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा। मैं विद्वान नहीं हूँ, मैं एक सामान्य, मैं हमेशा कहता हूँ, wherever I used to deliver the few words in the gathering, परम पूजनीय दलाई लामा जी हमेशा हम लोग कहते कि I am one citizen of this global, I am one of the citizen of this global. मैं इस संसार के 7 बिलियन नागरिकताओं में से हम भी एक है, और ये 7 बिलियन नागरिकता के जीवन लेने के बाद, मनुष्य जीवन लेने के बाद, अगर हम उसको प्रयोग नहीं कर पाएंगे तो जीवन लेना ही अधूरा है, मनुष्य की जीवन लेना अधूरा है।
जो हमने आप लोगों के शुरुआत में मैंने कहा छंगजुक सिमजो रिम्बोछे माइके पनम गिंजुरची केवा न्याम्बा में बायम खोन खुंद फेवशो वही माँ करुणा का जो हमें प्राप्त हो, जिनको प्राप्त हो वो अगर कोई लुप्त हुआ होगा तो उसे पुनः उपलब्ध हो। मागे पानम गिंजुरची जिनको बोधिसत्व बोधिचित्त प्राप्त ना हो उन लोगों को बोधिचित्त बोधि प्राप्त बोधिसत्व प्राप्त हो। तो ये प्रार्थना है। इसलिए मैं अधिक समय लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि बहुत ही कम समय है। आयोजकों ने पहले से ही संचालन करने वाले अनिल जी को भी संकेत कर दिया है क्योंकि इसलिए समय बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए समय बहुत ही एक सभी को आवश्यकता है। ये वर्ष हम जैसे सामान्य व्यक्ति परम पूज्य दलाई लामा जी का अनुयायी परम पूज्य दलाई लामा जी का 90 वर्ष में ये वर्ष भी करुणा वर्ष हम लोग मना रहा है। वी आर सेलिब्रेटिंग अ कंपैशन ईयर ऑफ द हिज ऑनेस्ट दलाई लामा 90 वर्ष के लिए। उसके भी बहुत ही आज हम लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। मैं अंत में ये कहना चाहूँगा क्योंकि मेरे परिचय में द डिप्टी स्पीकर द टिबेटन पार्लियामेंट इन एग्जाइल मुझे छोड़ के बाकी सब आप लोग गौरव महसूस करना चाहिए। यू आर इन द इंडिपेंडेंट नेशन सिटीजन। आप लोग एक स्वतंत्र देश के एक नागरिकता है, वो भी तथागत बोध के देश का। युद्ध नहीं बोध चाहिए। तो वो आज इन सामान्य मेरे वाणी को विराम करते हुए करुणा सबके लिए करुणा प्राप्त हो यही मैं प्रार्थना करता हूँ। और विशेषकर परम पूज्य ने गुरु जी को तो इस साल 2025 और 26 तो आपने जो पिछले 67 इयर्स जो यात्रा किया है उसका उपलब्धियां तथागत बुद्ध ने इस साल आपको दिया। जैसे सभी लोगों ने कहा योगा का इंटरनेशनल का लद्दाख कभी कई से अपनी काउंसलर और लद्दाख की संस्थाओं ने भी आपको ऑनर किया। और जो आज अनेक आपके माध्यम से इस साल 20वीं त्रिपीठक चंडी कभी आपके नेतृत्व में बोध गया में अभी समापन हुआ। आपके नेतृत्व में अंडर योर लीडरशिप थेरावादा संपूर्ण देश के लोगों को अध्यक्षता करते हुए आपने ये भी कार्यक्रम का आयोजित किया। मैं इन्हीं वाणी के विराम के साथ यदि अगर मेरी वाणी में त्रुटियां हैं तो मैं क्षमा मांगना चाहूँगा। जय बुद्धा, जय जगत, जय करुणा। नमस्कार, आदर आदाब, अभिनंदन, आभार आप सभी का। आज इस महाकरुणा दिवस में हिज होलीनेस भिक्खू संघ सेना जी को उनके 68वें जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी दिल्ली की तरफ से। और इस जो है दिन जो शब्द है करुणा उसकी जो पहचान है वो कहते हैं इंसानियत की सबसे खूबसूरत जो पहचान है वो करुणा है। करुणा का जो अर्थ है वो सिर्फ दया दिखाना नहीं बल्कि दूसरे के दर्द को अपने दिल में महसूस करना, उसकी तकलीफ़ को समझना, उसे कम करने की कोशिश करना है। करुणा वह रोशनी है जो अंधेरे दिलों को उजाला देती है। आज हम एक ऐसे दौर में गुजर रहे हैं जहां दौलत, पद, ताकत को सफलता का पैमाना माना जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर हमारे दिल में करुणा नहीं तो हम अंदर से गरीब हैं। एक मुस्कान, एक नरम शब्द, एक मदद का हाथ कभी कभी किसी की जिंदगी को बदलने के लिए काफ़ी होता है। करुणा सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं बल्कि जानवरों, गरीबों, बीमारों, बुजुर्गों और कमज़ोरों तक फैलाती है। जब हम किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, किसी गिरे हुए को उठाते हैं, किसी टूटे दिल को ढाढ़स देते हैं, वही असली इंसानियत जिंदा होती है। हमें याद रखना चाहिए
कि हम सब कभी ना कभी कमज़ोर होते हैं। आज 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 जो मजबूत है कल उसे भी सहारे की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करें जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। महान लोग वह नहीं होते जो ऊंचे मकानों में रहते हैं, बल्कि वे लोग होते हैं जो ऊंचे दिल में हो, जिनके दिल ऊंचे होते हैं। करुणा दिल को नरम बनाती है, रिश्तों को मजबूत करती है, समाज में अमन व शांति का गहना पहनाती है। आइए हम सब संकल्प लें कि हम नफरत के बदले करुणा, गुस्से के बदले सब्र और बेपरवाही के बदले मोहब्बत को अपनाएं, क्योंकि याद रखिए कि करुणा कोई कमज़ोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। लव फॉर ऑल, हेटेड फॉर नन, यही अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी का पैगाम है। और आज हम सब यहाँ विश्व शांति के लिए बैठे हैं। दुनिया में जो हमारा काम है विश्व को शांति की ओर लाना है, और यही काम जो है हमारे हिज होलीनेस भिक्खू सक्सेना जी एक लंबे समय से करते आ रहे हैं। यही काम डॉक्टर मार्कंडे राय जी कर रहे हैं, यही काम प्रियरंजन त्रिवेदी जी कर रहे हैं, यही काम हमेशा से जो है संदीप मारवा जी जो फिल्म सिटी नोएडा के जो है फाउंडर संस्थापक हैं वो हैं। इसी तरह फादर थॉमस हैं, इसी तरह जो है मर्चेंट साहब हैं। इसी तरह बहुत सारे जो है यहाँ पे जो बैठे हुए विराजमान महानुभाव हैं। आप सभी जो है इस दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो विश्व शांति की ज़रूरत है, और इसमें आप सबका सहयोग बहुत ज़रूरी है और आप सब कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर हिज होलीनेस भिक्खू सक्सेना जी को उनके 68वें जन्मदिन पर महाकरुणा दिवस की बधाई देते हुए अपने शब्दों का विराम करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। सबको मेरे ओर से जुले। And some of you may not be understanding the meaning of Jule. Jule is an expression of compassion, love, empathy, sympathy. That leads me to what I say, the umbrella. Compassion is an umbrella kind of thing under which you get all the good qualities of a good human being. For instance, love, sympathy, empathy, and the desire to help the needy and the destitute. And Anil ji and Guru ji, thank you very much for inviting me. And I'll be very, very brief. In fact, just a few seconds. And I remember last August, I had the opportunity of visiting this great institution, MIMC. He had invited me, and then I had 5 days of beautiful days. And then every aspect in the institution, apart from his entire body is embalmed in a way with compassion. आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप गेट के अंदर जाएं, you are in a region where there is nothing but compassion, full of love, sympathy, empathy. Therefore, गुरु जी इस बार इस अगस्त में सेम टाइम अगर आप बुलाए या ना बुलाए मैं आऊँगा, और मेरे फ्रेंड्स को भी ग्रुप को लेके ही आऊँगा, ताकि क्योंकि वी कैन नॉट नाउ हियर आफ्टर। एक बार बोलते हैं ना कि एक बार टेस्ट कर लिया उसके बाद आप रह नहीं सकते हैं, वो वाला हिसाब हो गया हमारे साथ। तो आई वुड लाइक टू जस्ट 1 or 2 थिंग्स अबाउट कंपेशन। क्या कंपेशन है? कंपेशन, सेल्फ कंपेशन इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड नो एंड पुट इनटू एक्शन। क्योंकि जब तक आप एक अच्छा इंसान ना बने आप दूसरों को अच्छा ना बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक बैड इंसान, एक गंदा आदमी दूसरों को अच्छा नहीं कर सकता है। वो तो अपना वाइब्रेशन, गंदगी या थॉट का या अदरवाइज विल बी स्प्रेडिंग एवरीवेयर, एंड देयरफॉर द वर्ल्ड अराउंड हिम विल बी ऑल ऑफ नेगेटिविटी। तो मैं समझता हूँ कि सब कंपेशन आपको अपनाना है, और यहीं आज के बाद घर जाके अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, अपने मोहल्ले में इसकी प्रैक्टिस होना आपको बहुत ज़रूरी बनता है। मैं करता हूँ गुरुजी की मदद से, इनकी मेहरबानी से मैं हमेशा करते आ रहा हूँ, और मुझे ये बात इतनी अच्छी लगती है कि उसके बगैर अब रहना मुश्किल हो जाता है, नींद खराब हो जाती है। थैंक यू वेरी मच and all the best to all of you. We on behalf of Mahabodhi International Meditation Center
Confederation of Indian Universities, Indian Institute of Ecology and Environment, and Global Peace Foundation India propose a hearty vote of thanks to all the religious and spiritual leaders on the occasion of Mahakaruna Divas 2026. First of all, we congratulate Reverend Bhikkhu Sanghasena Ji, His Holiness, on his 68th birthday. We assure all of you that we will leave no stone unturned to see that Mahakaruna Vishwa Vidyapith grows to a big height and that the certificate and diploma courses launched today becomes popular. Thank you very much. Jai Hind.